can take 2, 3 verses, 4, 5 verses, whatever. So we are moving ahead from verse number 16, chapter 4. Name of the chapter is Transcendental Knowledge, wherein Lord Sri Krishna is imparting transcendental knowledge to his very dear friend Arjuna, who is so to say confused or bewildered about his duty, what he should do, what he should not do, and being very loving towards his dear friend Arjuna. Lord Krishna is explaining him the real knowledge and guiding him what he should do and what he should not. So here we'll be discussing about action, inaction, and prohibited action. This 16 we decided kim karma kim akarmeti kavayo api atra mohita tatte karma pravakshami yajjatva mokshase ashubhat. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Even the intelligent are bewildered in determining what is action, what is inaction, and what is inaction. Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be delivered from all misfortune. Verse 4.17. कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गति. Translation: the intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. Next, 4.18. कर्मणि अकर्म या पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्मकृत्. Translation: one who sees inaction in action and action in inaction is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. Verse 4.19. यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः
ज्ञानांगी दग्ध कर्माणां तम अहो पंडितं बुधः. Translation: one is understood to be in full knowledge, whose every endeavor is devoid of desire for sense gratification. He is said by the sages to be a worker for whom the reactions of work have been burned up by the fire of perfect knowledge. Namo Vishnu-padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Saraswate Devi Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Deshapari Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda Bolo Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So today, by the arrangement of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, we all have come together to discuss something from Bhagavad Gita, transcendental literature. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. So recently we had Gita Jayanti and devotees and followers of Srila Prabhupada are distributing Bhagavad Gitas all over the world. Because this one book is essence of all the literatures. It's emanating directly from the lotus mouth of Supreme Lord Sri Krishna. This Bhagavad Gita has the power to give all knowledge for all the living entities so that they can come back to their or reinstate themselves in their original situation of Satchidananda Swarup. Because living entity by nature is eternal and full of knowledge and at the same time blissful, truly blissful. So Lord Krishna, by explaining this knowledge to Arjuna, giving all of us an opportunity to also receive that knowledge which was actually lost due to break in the disciplic succession. So here again, Lord Krishna is directly giving original knowledge to Arjuna. So this is the original knowledge which we are getting from our Guru Parampara, starting right from Lord Sri Krishna, coming to Srila Prabhupada and his followers. तो भगवत गीता से हम चर्चा कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से। और भगवत गीता एक ही ऐसा ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुआ है।
और ये सारे वेदों का सार है, और इसमें जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान समस्त जीवों के कल्याण के हेतु भगवान ने दिया है। और जो भी जीव इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेगा, तो उसके जीवन से सभी दुख लुप्त हो जाएंगे और हमेशा वो आनंद में रहेगा। लेकिन क्योंकि हम इस जगत में हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई गृहस्थ है, कोई ऑफिस में जाता है, कोई बड़ी पोस्ट पे है, तो कोई बिजनेस करता है, तो कुछ ना कुछ हमको करना ही, क्योंकि जीव स्वभावतः एक्टिव, मतलब कुछ ना कुछ क्रिया करते रहते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, एक्शन क्या नहीं करना चाहिए, और क्या भगवान और क्या 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 कौन से ऐसे कर्म है, क्या करने से हमारे कर्म अकर्म बन जाएंगे। तो हम सभी जानते हैं अच्छे कर्म और बुरे कर्म। अच्छे कर्म क्या है? अच्छे कर्म क्या है? दान देना, हाँ, दान देना, हॉस्पिटल हॉस्पिटल खोलना, स्कूल खोलना, हाँ, किसी को अपनी वाणी से दुख नहीं देना, हेल्पिंग समवन, किसी की मदद करना अलग अलग तरीके से, हाँ, परोपकार करना, दूसरों पे दया दृष्टि रखना, ये सब अच्छे काम। और माता जी ने बोला किसी को अपनी वाणी से दुख नहीं देना। अभी ट्रैवलिंग से मैं आ रहा था, तो सामने ऑटो और बाइक वाले एक दूसरे को वाणी से बहुत आनंद दे रहे थे। फूलों की वर्षा कर रहे थे। तो ये सब चलता है आज के जगत में, क्योंकि कलयुग में हमेशा दोगलापन और झगड़ा, कलयुग की खासियत है, ये सब चलता रहे। हम अंदर से कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और दिखाते हैं, और प्राय हम हमारे अहंकार को थोड़ी सी भी ठेस पहुंचेगी तो हम झगड़ा करने के लिए उतारू पहुंच जाते हैं। तो अच्छे कर्म बताए, अभी इनको क्या कहेंगे हम? इनको कहेंगे कर्म। और इसके विपरीत क्या है? बुरे कर्म। बुरे कर्म कौन से हैं? गुस्सा करना, झूठ बोलना, लालच, चोरी करना, झगड़ा करना, चोरी करना, और मारामारी करना, डिशुम डिशुम। और हाँ हाँ, किसी को जान से मार देना बहुत अच्छा काम है कि नहीं? जीव हत्या बहुत ही घृणास्पद कार्य है, तो ये विकर्म में आएगा। कर्म, अच्छा कर्म, विकर्म। तो अगर हम देखेंगे गीता में अर्जुन शुरुआत में लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो सोच रहे थे मैं क्यों जीवों की हत्या करूं, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको समझाया, और बाद में उन्होंने क्या किया? लाखों लाखों लोगों की हत्या कर दी। तो क्या हम ये कहेंगे कि अभी तो हमने चर्चा की, किसी का खून करना, किसी को जान से मार देना, वो बेहद घृणास्पद कार्य, पाप कृत्य है, विकर्म है। तो क्या हम ये कहेंगे कि अर्जुन ने बहुत बड़ा पाप किया, लाखों लाखों लोगों को मार दिया? तो वो भी भगवान श्री कृष्ण बता रहे मार दो सबको। कोर्ट केसेस, गीता पर इनसाइटिंग वॉर, कोर्ट केस, रशिया, रशिया।
there are many court cases, but court has no mention of such cases. कि कोर्ट वालों को पता नहीं कि ये क्या है, उनके स्कोप में नहीं। ऐसे एक बार हुआ कि एक व्यक्ति ने कोर्ट में याचिका दायर की, उन्होंने कहा कि कोर्ट शुड डिक्लेयर दैट आई एम गॉड। मैं भगवान हूँ, कोर्ट को डिक्लेयर करना चाहिए। लेकिन भगवान को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है और जज बोलेंगे तभी वो भगवान बनेंगे, मानेंगे। तो जज ने सीधी सुनवाई कर दी, दिस केस इज आउट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि भगवान के बारे में कोई भी क्लॉज, कोई भी पिनल कोड कुछ भी दिया नहीं। तो बहुत भगवान है, और खास करके इंडिया में काफी भगवान है। अंदर अंदर जाएंगे गाँव में तो बहुत भगवान हमको मिले। 33 कोटि बोलते हैं, उससे भी ज्यादा है भारत में। तो हम यहाँ देखते हैं कि अर्जुन हत्या कर रहे हैं और भगवान बोल रहे हैं आप लड़ाई करो। तो यहाँ आ जाता है अकर्म। तो वास्तव में एक्शन मतलब कर्म, जो अच्छे काम जो हमको करने चाहिए। फॉरबिडन एक्शन, इसका अर्थ यह है कि पाप कृत्य जो हमको नहीं करने चाहिए, जैसे किसी को मारना। और इन एक्शन का अर्थ है भगवान की भक्तिमय सेवा में जो हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, उसको अकर्म कहा जाता है या इनएक्शन कह सकते। तो यहाँ पर अर्जुन हम देखेंगे कि वो मार रहे हैं, जो सामने उनकी सेना थी, यहाँ तक कि उनके रिश्तेदार थे, भाई थे, पितामह भीष्म थे, गुरुजन थे, तो उनको भी उन्होंने मारा। तो कोई कहेगा कि ये क्या है, भगवान के सखा है और ये सब क्या कर रहे हैं। तो वास्तव में उनको भगवान ने कहा था कि ये उनका कर्तव्य है, और जो उनके सामने थे वो अधर्म के पक्ष में थे, दुर्योधन के पक्ष में थे, और धराधाम पे शास्त्रों से दिया हुआ मार्गदर्शन है, और उस तरह से अगर धराधाम के जीवों को जीवन यापन करना है तो अधर्मी लोग सत्ता में नहीं होने चाहिए। तो इसलिए भगवान के उपदेश के उपरांत अर्जुन ने उनको मारा। किसी को मारना गलत है, लेकिन फांसी की सजा तो हम यहाँ कोर्ट भी सुनाई देता है। कसाब को फांसी की सजा दी थी क्योंकि उसने कई सारे बेगुनाहों को मारा। जैसे कई सारे दानव थे, राक्षस थे, उनको मारना ये विकर्म नहीं है, वास्तव में कर्म या अकर्म उसको हम कह सकते हैं, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए। और भगवान, जैसे हमने पढ़ा, कहते हैं कि कर्म अकर्म विकर्म, इसको समझना इतना आसान नहीं। कई बार प्रश्न उठते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वैसा कुछ कर्म किया होगा। तो लेकिन समझ में नहीं आता पिछले जन्म में किया था, कब किया था, इसी जन्म में किया था, अभी क्यों हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है। और एक व्यक्ति है, उनके साथ उनकी पत्नी ने कुछ गलत किया था, और वो तब से वही सोचते थे उसके साथ भी कुछ गलत होना चाहिए, एक्शन रिएक्शन, उसके साथ भी कुछ गलत होना चाहिए। कई साल हो गए वही सोचते थे यार इसको क्यों कुछ नहीं हो रहा है। फिर उसके अंदर कंफ्यूजन था। एक ये भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने उसको कुछ किया होगा पिछले जन्म में, उसका रिएक्शन मिला, उसको पता नहीं। मैंने कुछ किया था इसलिए रिएक्शन मिला, या इसी ने मुझे कुछ किया था अभी इसको कुछ होगा। तो एक्शन रिएक्शन भगवान खुद बोल रहे हैं इतना आसान समझना इसको नहीं है। लेकिन शास्त्रों में दिया है
जो भी हमारे साथ घटित होता है वो 3 कारणों से होता है। एक, या तो हमने कुछ कर्म किए होंगे पीछे, उसके फलस्वरूप हमको मिल रहा है। कुछ अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, कुछ खराब किया है तो कुछ खराब मिलेगा। ये हो गया एक। दूसरा कारण हो सकता है कि भगवान हमको कुछ सिखाना चाहते हैं, है ना। कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि उससे हम कुछ सीखते हैं, कि जिस जोर से हम गाड़ी चलाते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, तो अचानक से उधर से भी दूसरा सिग्नल तोड़ते हैं, तो एकदम एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, तो हम बच जाते हैं। हम सीखते हैं उससे कि हाँ, अगली बार मैं सिग्नल नहीं तोड़ूंगा। वैसे कई बार डिफिकल्ट सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है। मे भी कोई बहुत अच्छा भक्त है, सब अच्छा अच्छा हो रहा है, कई बार अहंकार भी आ जाता है कि हमें बहुत ही फर्स्ट क्लास भक्त हूँ, मेरे जीवन में कुछ निगेटिव तो हो गई। फिर भगवान शायद उनके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन लाए कि so that he becomes grounded। क्योंकि हम भगवान को सरल और विनम्र लोग पसंद है। भगवान के पास कौन जा सकता है जो सरल है और विनम्र है। कॉम्प्लिकेटेड और अहंकारी लोग भगवान के पास में नहीं रखना चाहिए। हम कहीं पे जाते हैं, पिकनिक को जाते हैं, किसको लेके जाते हैं साथ में? हम हमको जो लोग पसंद है, बराबर, उन्हीं को हम लेके जाएंगे। हमारे जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम भक्त है, अच्छे भक्त है, विनम्र, उनको लेके जाएंगे। जो डिस्को पार्टी वाले हैं, वो किसको लेके जाएंगे? ड्रग्स लेने वाला, है ना, दारू पीने वाला, अच्छा डांस करने वाला, वो लोग उनको लेके जाएंगे। बॉलीवुड वाले बॉलीवुड को लेके जाएंगे। उसी तरह भगवान, मतलब उनकी सरलता का हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतने सरल है और काफी विनम्र है। कई सारे विनम्रता पूर्वक उन्होंने काम किए हैं। निश्चित के राज की हड्डी में उन्होंने मेयर सर्विस की। और जब सुदामा उनके घर आए तो उन्होंने सुदामा के चरण धोए। वास्तव में भगवान चरण कमल किसी को भी प्राप्त नहीं होते, करोड़ों करोड़ों जन्म तपस्या करने के बाद भी। और वे सुदामा के चरण धो रहे हैं। भगवान को, भगवान के पास सभी ऐश्वर्य के होने के बाद भी काफी विनम्र है। विनम्रता हम सभी में होनी चाहिए, लेकिन अहंकार के वश हम झगड़ा करते हैं, बुरे कार्य करते हैं। तो अर्जुन ने जो कार्य किया है वो दुष्टों को मारने के लिए किया है। और जैसे हम कार्य करेंगे वैसे हमको रिएक्शन मिलेगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि प्रथम कारण ये हो सकता है हमारे जीवन में कुछ घटित होता है क्योंकि वो कार्य हमने किया था, कुछ अच्छा है बुरा उसका फल हम। दूसरा कारण क्या है, कुछ सीख हमको भगवान देना चाहते हैं, कुछ लेसन सिखाना चाहते हैं, उसलिए वो काम या कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हमारे जीवन में हो सकता है। और तीसरा है, वो है यश या कीर्ति बढ़ाने के लिए। जैसे कोई सोचेगा कि पितामह भीष्म इतने अच्छे भक्त थे, लेकिन उनको बाणों की शैया पे सोना पड़ा, है ना। अच्छी बात है ये, इतने सारे बाण उनको लगे, लेकिन हम देखेंगे तो कितने सारे कैरेक्टर है महाभारत में ना। दुर्योधन है, कौरव है, पांडव है, कई सारे, हजारों हजारों पात्र है, लेकिन इसमें से भीष्म पितामह का जो कैरेक्टर है वो उठ के आता है। और जब उनको सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है, वही आता है, बाणों की शैया पे वे सोए। तो इच्छा मृत्यु था, उसके बाद भी उनको कुछ नहीं हुआ। उनको इतने सारे बाण भेद लिया, फिर भी वो, उनका अंत नहीं हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो शरीर से ऊपर गए थे और उसी बाणों की शैया पर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दिया। और भगवान की स्तुति उन्होंने की, भीष्म स्तुति बहुत सुंदर है। तो ये हुआ भीष्मदेव की कीर्ति या यश बढ़ाने की। इन तीनों में से किन्हीं कारणों के लिए कुछ घटनाएं हमारे जीवन में हो सकती।
तो कॉम्प्लिकेटेड है एक्शन रिएक्शन समझना, लेकिन कुछ भी अगर हो रहा है जीवन में तो ये 3 रेफरेंसेस है। एक, या तो मेरा कुछ कर्म होगा उसका फल मिल रहा है, दूसरा भगवान मुझे इस सिचुएशन से कुछ सिखाना चाहते हैं, या तीसरा भगवान यश बढ़ाना चाहते हैं। एक्शन इन एक्शन और फॉरबिडन एक्शन, कर्म, अच्छे कर्म, निहित कर्म, विकर्म जो बुरे काम है, पाप कर्म, और अकर्म का अर्थ यह है कि हम भगवान की सेवा में जो कर्म करते हैं उसको अकर्म कहा जाता है। तो अच्छे बुरे कर्म हमसे होते रहते हैं कि वास्तव में हमको ऐसे स्तर पर आना है, क्योंकि अच्छे कर्म करेंगे और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हमारे मन में होंगी, तो मृत्यु के उपरांत हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, और स्वर्ग लोक में हमको सारी अपनी इच्छाएं पूरी करनी मिलेगी, और उसके बाद फिर से हमको धराधाम पे आना पड़ेगा। और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमको नरक में जाना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, स्वर्ग में चले जाएंगे, इसमें क्या है। वास्तव में स्वर्ग में भी परमानेंट पोजीशन नहीं है, वहां से भी हमको पृथ्वी पे आना पड़ेगा, नरक में जाएंगे वहां से भी आना पड़ेगा। तो इस चक्कर से अगर हमको छूटना है तो भगवान के परम धाम को हमको जाना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे हमको शुद्ध सत्व स्तर पे आना पड़ेगा, प्योर गुडनेस, और जिसमें हमारा जो भी कर्म होगा, जो भी कार्य होगा, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या कर्म है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद हमको मार्गदर्शन करते हैं कि एक्शन इन एक्शन ये सब समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको समझने के लिए हमको हमारे जो पूर्व आचार्य हैं, महाजन है, उनके मार्गदर्शन में हमको जीवन यापन करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद, हमने महाजन है, प्रहलाद महाराज है, शिव जी है, जनक महाराज है, तो इन सब के जीवन है, और भी आगे चलकर अम्बरीश महाराज है। इन्होंने एक उदाहरण स्थापित किया है कि एक भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए, कैसे हर एक कृत्य जो करता है, खाता है तो भगवान का प्रसाद ही खाएगा, बोलेगा तो भगवान के बारे में ही बोलेगा, खाएगा तो भगवान का प्रसाद ही खाएगा, सोएगा भी इसलिए कि थोड़ी विश्रांति लूंगा तो मैं कल अच्छे से भगवान की सेवा कर पाऊंगा। पैर पैरों का यूज क्या करेंगे मंदिर में जाने के लिए, हाथों से क्या यूज करेंगे भगवान का मंदिर साफ करने के लिए, भगवान के लिए भोग बनाने के लिए, कानों से सिर्फ भगवान का कीर्तन ही सुनेंगे। इस तरह से हमारा जीवन भी होना चाहिए। तो सभी आचार्यों का मार्गदर्शन है, और खासकर हम सबके लिए श्रील प्रभुपाद, उन्होंने सभी कथाओं में, कीर्तन, लेक्चर और ग्रंथों में पूरा मार्गदर्शन दिया। महाजनों ये न गता सुपंथ। तो महाजन आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, एक रास्ता हमारे लिए छोड़ दी जाती है कि जिसको हम फॉलो करेंगे तो भगवान तक हम पहुंच सकते हैं। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपामूर्ति, श्रील प्रभुपाद धराधाम पर आए थे, उनको भगवान ने भेजा था। किस लिए भेजा था, किसके लिए भेजा था, हम सबके लिए। लोग बोलते भगवान किधर है, भगवान किधर है, दिखते नहीं है, ऐसे है वैसे। लेकिन अगर हम सिंसियर है तो भगवान अरेंजमेंट कर श्रील प्रभुपाद ने भेजा, उनका संदेश हम तक पहुंचा है, और धीरे धीरे हमारे जीवन में हम देख रहे हैं परिवर्तन आ रहा है। जीवन के बारे में हम जान रहे हैं, जीवन क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, दुख क्यों हो रहा है। और आजकल सब कुछ फैसिलिटी है जो पहले नहीं थी। आजकल मोबाइल है, मतलब मैजिक जो हम बचपन में कोई सीरियल में देखते थे, जो जादू वाला होता था, उसमें एक गोला होता था, उसमें दिखता था कि वो वहां क्या कर रहा है।
अभी हमको सब दिखता है, वीडियो कॉल करते तो अमेरिका में कभी भी कर सकते। मैजिक को भी टच स्क्रीन हाथ से वो, ये बचपन में तो अनिमेजिन था कि जैसे कुछ आएगा हाथ से ऐसा करेंगे बड़ा हो जाएगा, हेलो जादू इसमें देखा। फर्स्ट क्लास, तो आ आप गया कैसे है, हो? फिर भी इतनी सारी डिशेस है, हाँ इतनी सारी मूवीज है देखने की, इतने सारे टाइप का म्यूजिक बोलो है, बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है? अम्यूजमेंट पार्क, लेकिन फिर भी आज कोई भी सुखी नहीं। जब सर्वे किया जाता है हैप्पीनेस का, तो सबसे ज्यादा दुखी पूरे हिस्ट्री में लोग आज हैं। इतनी सारी सुख सुविधाएं आज उपलब्ध हैं। तो वास्तव में हमको सुखी होना है तो उसका मार्गदर्शन भगवान ने दिया है, और भगवान कहते हैं कि इसको अच्छे से समझने के लिए भक्तों के गाइडेंस में हमको ये सब प्राप्त करना चाहिए, आचार्यों की गाइडेंस में हमको करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने श्रील प्रभुपाद को यहाँ नियुक्त किया, और आज हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा अ, कैसे मैं भगवान को खोज रहा था बचपन से ही। बचपन से ही मेरा लक्ष्य था कि मैं भगवान को पाना है, और मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, माता जी ने बताया था, माता श्री ने, कि जो भी प्रार्थना करेंगे तो सद्बुद्धि मांगना है भगवान से, और कुछ मांगने की जरूरत नहीं। वही मैं करता था, और धीरे धीरे पढ़ाई होती गई, और मुझे बचपन में स्कॉलरशिप मिला था, मैं बोर्डिंग स्कूल में गया था, सब कुछ वहाँ फ्री था। 6 to 12 था, बट 6 to 10 में वहाँ पे था। तो वहाँ पर अलग अलग ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट से 80 स्टूडेंट्स को मिला था स्कॉलरशिप। तो वो लोग आए थे हॉस्टल, अलग अलग बैकग्राउंड से थे, कोई गरीब था, कोई ठीक ठाक था, कोई अमीर था, और अलग अलग कैटेगरी से वो होता है कोटा, उस तरह से वो आए। कोई बहुत अच्छे थे, पढ़ाकू थे, तो कोई एकदम डाकू टाइप के थे चोर भी थे। वहाँ चोरी क्या होती थी, हॉस्टल में तो पेरेंट्स मिलने आते थे, आएंगे तो क्या लेके आएंगे, हमारे इंडिया में चूड़ा, लड्डू, बर्फी, मिठाई कुछ लेके आते। तो कुछ एक ग्रुप था, वो देखता था कि किसको कौन मिलने आ रहा है, और बस रात को किसका पेटी फोड़ना है वो देखते थे। और पहले लोहे की पेटी होती थी और ताला होता था, और रात को उसका सामान गायब कर, ऐसे भी लोग। तो अलग अलग अनुभव आए, अच्छे बुरे जो भी। और फिर 10th के बाद में वापस अपने गाँव आ गया। तो जैसे हम स्कूल में जाते हैं, 5 घंटा बिताते घर में आ जाते हैं, वो फ्रेंड्स जनरली क्या उतने हम स्कूल में देखते आ जाते हैं। लेकिन हॉस्टल में ऐसा था कि सुबह से लेके रात तक उनके साथ ही जॉगिंग करना है, पीटी करना है, एक्सरसाइज करना है, नाश्ता करना है, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, बाद में स्पोर्ट्स, बाद में सोना, कपड़े धोना, सब कुछ। तो इट्स लाइक 5 साल पूरे साथ फैमिली के जैसे था। 5 साल के बाद में जब वापस आया, और उस समय व्हाट्सएप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, टेलीफोन भी बहुत कम ही के घर में था। तो अगर कम्युनिकेट करना है तो फिर वही था, लेटर लिखो। तो मेरे दिमाग में फिर से वो आने लग गया कि एक लाइफ भी ऐसी होती है, हमारी लाइफ जो होती है ऐसी होती है, हम जन्म लेते हैं, क्यों, है ना, वो एक लाइफ के जैसा था। वो 5 साल वहाँ एंट्री किया, मतलब जन्म हुआ, 5 साल में फ्रेंड्स सब बनाए, कुछ हंसी मजाक सुख दुख बांटा, और एंड में वापस आ गया। तो मुझे लगा जीवन भी ऐसे ही। और उसके पहले भी मैं था, 5 साल में भी मैं था, वहां पे कुछ फ्रेंड्स हुए, 5 साल के बाद भी मैं एग्जिस्ट करता था। वैसे ही मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है, इस जन्म में आने से पहले, इस शरीर में आने से पहले भी हम थे, अभी भी हम हैं इस जीवन में, मृत्यु तक हमारे कुछ फ्रेंड्स होंगे, कुछ सो टू से एनिमी होंगे। हम चाहते तो नहीं, लेकिन आउट ऑफ एनिमी कम्स आउट ऑफ एन, तो ये सब होगा और एंड में। तो फिर जब मैं वापस आया, तो फिर मुझे लगा कि लाइफ भी ऐसा ही, सब कुछ टेम्पररी है, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब टेम्पररी, तो आई शुड फाइंड गॉड मोर रियलिस्टिक। तो फिर मैं टीवी में उस समय आसाराम बापू आते थे, तो उनको बहुत सुनने लगा, अच्छा लगता था मुझे, कॉमेडी भी करते थे, सब बात सुनता था। और
अच्छा लगता था, कुछ स्पेसिफिक क्लियरली कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि प्राय पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में पता ही नहीं कि भगवान कौन है, सबको लगता है कि कुछ एनर्जी है, सुपर पावर है, ऐसा। तो मुझे भी लगता था ठीक है ऐसे कुछ होगा। तो फिर मैं पढ़ने लग गया, फिर कुछ और सनातन भारतीय संस्कृति, बहुत सारी संस्थाएं हैं भारत में, तो वो लोग आए हमारे घर में प्रचार करने के लिए। तो वो बोल रहे थे कि नाम जप और नाम स्मरण सर्वोपरि है। तो और वो बोल, पॉइंट तो सही बोला उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे जो फैमिली गॉड है वो हमारे लिए अपॉइंटेड है, उनका ही नाम लेना। मुझे लगा ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो उनसे कुछ कैसेट लिया मैंने, तुरंत सुना, फिर मैं वो करने लगा, वो भी करने लगा। फिर मेरे एक फ्रेंड ने योगा का पुस्तक दिया था भगवान को पाने की, तो वो सुबह सुबह ऊपर जाके टेरेस में वो भी मैं करता था, प्राणायाम वगैरह। और फिर 12th के बाद मेरे भैया ने बोला था अगर पुणे पुणे मुंबई से ही करना है, फिर मैंने अप्लाई किया और भगवान की अरेंज राजीव गांधी कॉलेज में एडमिशन मिल गया, तो वो नहीं बॉम्बे में था। यहाँ आया तो फिर से वही हो गया, घर से दूर हो गया, अकेला हो गया। मुझे लगा जीवन में तो मुझे भगवान को पाना है, तो मैं आसाराम बाबू के आश्रम में हमेशा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। थाना में आने वाले थे वो, अभी जाने वाला था वहां पे, लेकिन उस समय वो नहीं है, उनके बेटे या ऐसे कुछ कोई और आए वहां पे, तो मैं वहां गया ही नहीं। कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स हो गए, मैं कॉलेज में बिजी हो गया। किसी ने स्वामी विवेकानंद की बुक्स थी वो पढ़ी, फिर कभी ब्रह्मचारी ब्रह्म कुमारी उनके साथ चर्चा हुई, किसी ने ओशो की बुक्स थी। मैं खोज रहा था लेकिन सेटिस्फैक्टरी मुझे कुछ भी मिल नहीं रहा। कुछ क्वेश्चंस थे मेरे, उसका सवालों का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मैं घूमने के लिए बैंगलोर गया, तो बैंगलोर में साइट सीइंग में इस्कॉन बैंगलोर में देखने के लिए गया। तो वहां देखा शायद गौर आरती चल रही उस समय। जब बाहर निकला तो भगवत गीता लेके बैठे प्रश्न उत्तर करने। मुझे लगा बहुत अच्छा है, मैं प्रश्न पूछूंगा। मेरे भाई के एक कलीग थी, वो बोले हरे कृष्णा होना से दूर रहने का। ये लोग स्मगलिंग करते हैं सोने का, क्योंकि बैंगलोर इस समय बहुत सोना लगा है, और ड्रग्स लेते हैं और हिप्नोटाइज करते हैं, सम्मोहन करते हैं, और करोड़पति के लड़के सब कुछ छोड़ के उसमें चले जाते, धन भी पैसा भी लेके चले जाते, इससे दूर रहना है। तो फिर बोला ठीक है, तो प्रसाद वगैरह लिया, तो हमारा कॉलेज उस समय न्यू बॉम्बे में था, और बाद में कॉलेज इधर आ गया। और फिर हमारे कॉलेज में सेमिनार था, इस्कॉन जो मुकुंद माधव लोग आए, सब लोग सेमिनार हॉल में थे लेकिन मैं बाहर था। मुझे इतना सब बताया था, हिप्नोटाइज करेंगे, सम्मोहन करेंगे, मुझे लगा मुझे भी करेंगे, तो मैं अंदर गया नहीं काफी टाइम। लेकिन फिर मुझे लगा भगवान को पाना है तो रिस्क तो लेना पड़ा, जानना पड़ा कि वास्तव में है क्या। तो फिर मैं एकदम पीछे बैठा, बहुत बड़ा हॉल था, एकदम पीछे जाके बैठा कि सम्मोहन करेंगे तो मेरे ऊपर इफेक्ट कम होना चाहिए, कम रिस्क, रिस्क तो ले रहा हूँ लेकिन उसमें भी कम रिस्क लेना है। पीछे जाके बैठा, फिर बहुत ही साइंटिफिकली उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि ये साइंस है, भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ साइंस। और साइंस का मतलब ये है कि कुछ भी आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए और कुछ भी ब्लाइंडली रिजेक्ट भी मत कीजिए। और आजकल तो सब ब्लाइंडली हम एक्सेप्ट करते हैं, न्यूज़पेपर में जो भी आता है नासा ने ये लिख के दिया, बस हम कहाँ पूछते हैं क्वेश्चन, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं क्या? उन्होंने बोला मार्स में पानी मिला, क्या हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, मिला है कि नहीं, सच में है कि नहीं? कुछ नहीं, नासा ने बोला न्यूज़पेपर में, हम एक्सेप्ट कर लेते। दिस इज नॉट साइंस। साइंस मींस डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली और डू नॉट रिजेक्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। तो उन्होंने बताया प्रभु जी ने कि जैसे न्यूटन था, पेड़ के नीचे बैठा, एप्पल नीचे गिरा, तो उसने सोचा कि कुछ फोर्स होगा, मे बी देयर इज अ फोर्स, दैट वाज द हाइपोथेसिस, जो सच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूजन किया। तो उन्होंने बोला कि जो भगवत गीता है, जो शास्त्र, उसका हाइपोथेसिस, डोंट एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली, डोंट रिजेक्ट आल्सो ब्लाइंडली। और फिर उसमें जो एक्सपेरिमेंट दिए, पढ़ना है और जब करना है, ध्यान करना है, उसके बाद आपको खुद के अनुभव आएंगे।
उसके ऊपर आप कंक्लूड कीजिए कि वास्तव में भगवान है या नहीं। और भगवान तो है। ये एक्सपेरिमेंट ही है जो हम करते हैं, जब करना है, कीर्तन करना है, सुनना है भगवान के बारे में, जानना है, सेवा करनी है, यात्रा में जाना है, और उसमें धीरे धीरे हमको अनुभव खुद का आएगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाहर गया, भगवत गीता वहाँ स्टॉल लगा था, मैंने तुरंत भगवत गीता ली। दिसंबर का महीना था, मैराथन। रूबी भाटिया करके सेलिब्रिटी थी, उन्होंने कुछ डोनेशन दिया था, 20 रुपीज में मुझे इंग्लिश भगवत गीता मिली। मैंने एक मेरे लिए फ्रेंड के लिए भी और फिर पढ़ने लगा। तो उसमें दिया था, श्रील प्रभुपाद बार बार बोलते हैं कि कृष्णा इज स्पिरिट पर्सनालिटी इम्पोर्टेंट। तो मुझे लगता था ये हाँ ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग है ना, इसमें ब्रेन वॉशिंग किया जा रहा है बार बार। ये था ना, बार बार बम्बर्ड करने से हमको लगता है कि हाँ। तो कुछ कुछ डाउट्स थे क्योंकि सुन रखा था निगेटिव। फिर कॉलेज में हमारे फेस्टिवल था, एनुअल फेस्टिवल में कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी था और प्राणेश्वर प्रभु आए थे उधर। उधर उनको बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं नीचे गया, वेट किया और जब आया तो मैंने उनको अपोलोजाइज किया। फिर वो बोले कि हमको ये सब नेगेटिव एक्सपीरियंस आते रहते हैं आजकल, और कोई बात नहीं। उन्होंने उनसे नाम पूछा, मेरा नाम बताया। फिर मैंने भी बोला मैंने सेमिनार अटेंड किया था, भगवद गीता में पढ़ रहा हूँ। बोले मंदिर आइए। तो मैंने बोला कि मंदिर तो मुझे आना ही था, मंदिर कहाँ है मुझे पता नहीं। उन्होंने बताया कि जूह सर्कल है, वहाँ चंदन से नहीं, उसके आगे। तो मैंने बोला कब आएंगे, मैंने बोला आज ही आऊंगा। तो शाम को गया घर पे, फ्रेश हुआ, तुरंत आया, और जो भी मेरे सवाल थे पहले दिन उसका आंसर मुझे पहले दिन, इतने सारे जो लगे। तो श्रील प्रभुपाद ने जो ज्ञान दिया है भगवत गीता में, उनके ग्रंथों में इतना कंप्लीट है कि हर सवाल का जवाब उसमें आपको मिल जाएगा। चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो या साइंटिस्ट हो, इतने सारे साइंटिस्ट भी श्रील प्रभुपाद के शिष्य, इस सारे सवालों का जवाब वहां पर। फिर मंदिर आने लग गया, सेवा करने लगा। तो मैंने देखा इतना बड़ा गेस्ट हाउस है मंदिर में, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ होता होगा। ड्रग्स वगैरह है ऐसा कुछ। तो फिर मैं आता था, यूथ फोरम में आता था, सेवा करता था। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था गुरुकुल में, और शाम को बड़े बड़े बर्तन होते थे जिसमें खाना पकता था, वो सब धोता था। और डोनेशन नहीं देता था मंदिर, 1 भी रुपया। सेवा करता था और फ्री में जो भी फैसिलिटी सेवा मिलता है वो लेता था। डाउट था गलत जगह डोनेशन क्यों देना है। बाकी छोटे मोटे मंदिर में जाता था, पंडित जी को दक्षिणा देके शरण नेशनल मंदिर में नहीं डालता, इस्कॉन मंदिर। फिर बुक्स पढ़ना शुरू किया, मेरी जॉब लग गई, उसी कॉलेज में लेक्चरर बन गया। वो बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, बुक्स लेकर के मंदिर से पढ़ता था, अच्छा लगता था कीर्तन सुनना। कहीं ना कहीं डाउट था कि सच में जेन्युइन है कि नहीं। फिर मंदिर में आता था तो प्राणेश्वर प्रभु सर इतना अच्छा ट्रीटमेंट देते थे, प्रसाद अरेंजमेंट रहता था, सोने के लिए सोने का अरेंजमेंट, सब कुछ। मुझे लगता है ये सब कुछ ना कुछ स्वार्थ तो जरूर होगा इसमें। ऐसे चलता रहा। फिर एक दिन मुझे प्राणेश्वर प्रभु एक सीढ़ी, उसमें सीढ़ी चलती थी, उस सीढ़ी में लोअर एवर वेल विशर मूवी थी। शीला प्रभुपाद की बायोग्राफी, पूरे जीवन के ऊपर 1 ही घंटे की, 55 मिनट्स की है। और फिर मैं घर गया, उसको कंप्यूटर में, और उस 1 घंटे में सर समझ में आ गया कि शीला प्रभुपाद साधारण साधु नहीं है। वास्तव में शीला प्रभुपाद को भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वो एक शुद्ध भक्त। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि बस इन्हीं की शरण में रहना है, सेवा करना। तो जीवन बहुत ही सरल हो गया तब से। जो भी होता था मैं उन्हीं से प्रार्थना करता था, जैसे गुरु के लिए। इनफैक्ट वो मूवी देखते देखते मुझे लगा कि आई शुड आल्सो गेट इनिशिएटेड, और तभी मैंने शिव बाबा को प्ले करना शुरू किया। नेचुरली आई वुड से कि आपकी बेस्ट डिसाइपल आई शुड हैव एज माय स्पिरिचुअल मास्टर, ऐसे प्रे करता था। और प्रे करते करते कि हम समझ नहीं पाते वास्तव में स्पिरिचुअल जो चीजें हैं वो हमारे समझ के बाहर है। इंद्रियों से, आंखों से, नाक से, कान से हम नहीं समझ, बुद्धि से नहीं समझ सकते, उसके परे है। इसलिए हमको आचार्यों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसलिए यही जो भगवान बता रहे कर्म अकर्म क्या करना है क्या नहीं करना है,
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसान नहीं है समझना। लेकिन आसान क्या है कि हम जैसे आचार्य के मार्गदर्शन में हमारी भक्ति को हम संपन्न करें। श्रील प्रभुपाद आए हैं और श्रील प्रभुपाद अभी भी है, अभी भी श्रील प्रभुपाद है। और वैसी श्रद्धा हमको श्रील प्रभुपाद में रखनी चाहिए। कई सारी मुश्किलें आती हैं जीवन में, सेवा में, बहुत कुछ होता है, लेकिन हमको श्रील प्रभुपाद पे विश्वास रखना है, अच्छे से भक्ति करनी है, उन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो सब कुछ होगा। कई भक्तों के कई अनुभव है, मतलब मिलियंस अनलिमिटेड है, कई सारे भक्तों ने तो बताया भी नहीं है, चले गए। कुछ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स है। तो एक इंसिडेंट रशिया में एक श्रील प्रभुपाद की डिवोट डिसाइपल थी, उनका नाम था पूर्णमासी। तो वो प्रचार करती थी। रशिया में उस टाइम बहुत स्ट्रिक्ट था, रिलीजियस कुछ भी प्रचार आप नहीं कर सकते थे, उसके लिए जेल में डालते, उनको पकड़ के जेल में डालते। जेल में जाने के बाद भी वो क्या करती थी, प्राण अच्छे जा रहे तो प्रचार, प्रीचिंग इज द एसेंशियल, भगवान ने बताया। जेल में भी प्रचार और हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन और जप करने को बोलती। तो जेल में उनको बार बार वार्निंग दी कि आपको हम मार डालेंगे, फांसी दे देंगे, लेकिन वो रुकी नहीं। तो फिर एक दिन क्या किया, जेल के अथॉरिटीज ने ब्लैक मैजिक करने वाली विच जो थी उसको उन्होंने बुलाया और ये माता जी को कुर्सी में बांध दिया और एक कमरे में वो आई और उसका कुछ असिस्टेंट था, दोनों मंत्र वगैरह बोलने लगे, आके घुमा घुमा के और मंत्र तंत्र करने लगे। और माता जी ने देखा कि काला सा साया, भूत या घोस्ट ऐसे कुछ उनको नजर आने लगा, रूम में पूरा धुआं धुआं हो गया, अंधेरा हो गया। तो उनको समझ में नहीं आया क्या करूं, उनको लगा मुझे प्रे करना चाहिए, तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू, ये सोचे कि ये चला जाएगा, फिर भी हो गया, कुछ हुआ नहीं। फिर उन्होंने मैं नरसिंह भगवान को पुकार दिया, नरसिंह भगवान को प्रेयर करने लगी, नमस्ते नरसिंह आए, फिर भी उसको कुछ हुआ ही। और फिर वो बेहोश सी होने लगी थी और वो उसके अंदर घुसने वाला था वो। तो फिर एंड में उन्होंने श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना शुरू, नमो विष्णुपादाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्। जैसे ही उन्होंने बोला, झट से गायब हो गया और वो जो थी विच जादूगरनी आई थी, उठ के खड़ी हो गई और वो बोले कि अब मुझे यहाँ से जाना है। पुलिस वाले बोले कि अरे काम तो हुआ नहीं है, आप काम पूरा कीजिए। बोले नहीं, क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा? उसके बाजू में एक ओल्ड मैन खड़ा है और बहुत स्ट्रिक्ट है और उसके आगे में कुछ नहीं कर सकता, और भाग भाग के यहाँ से प्रभुपाद प्रोटेक्टेड डिसाइपल। ऐसे कई अनुभव है और तभी भी बात लोग अनुभव कर रहे थे। आज श्रील प्रभुपाद फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, जैसे ये इंसिडेंट इसमें फिजिकली प्रेजेंट नहीं है बट स्पिरिचुअली और ऐसे अनुभव कई सारे भक्तों को आते हैं। श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, अपने भगवान वास्तव में अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते और उनकी जो भी इच्छाएं हैं, कई बार हमको ही नहीं पता होता है कि हमने ऐसी इच्छा की थी कभी, भगवान याद रखते हैं और वो पूरी करते हैं। और वैसे भगवान के भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं। प्रणाम मंत्र में बोला गया वांछा कल्प पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। शुद्ध भक्त सब जानते हैं और श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, तो क्योंकि वो जानते किसकी इच्छा क्या है, वो इस तरह से वो पूरी करते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे और बहुत सारी साड़ियां लेके आए इंडिया से। वहाँ उनकी डिसाइपल्स थी, उनके पास साड़ियां वगैरह कम ही थी, तो अलग अलग डिसाइपल को अलग अलग प्रभु जी लोग थे उनको धोती दे रहे थे ये। तो जहां तक मुझे याद है, गोविंद दासी करके उनकी डिसाइपल थी। माता जी ने बताया ना, साड़ी साड़ी ये साड़ी बैंगल्स उनके एक स्पेशल अट्रैक्शन होता है। तो गोविंद दासी जो थी माता जी,
एक साड़ी पे उनकी नजर पड़ी, उनको साड़ी अच्छी लगी, तो शिल प्रभुपाद बांट रहे कपड़ा बांट रहे, साड़ियाँ भी थी काफी, तो एक साड़ी उठाई, देखा, किसी को दिया, शी वाज एक्सपेक्टिंग वही साड़ी मुझे मिलनी थी, साड़ियाँ कम होती गई, उनको लगा अरे अभी गया, एंड में 2 ही साड़ी बची और मुझे चाहिए थी दूसरी, तो फिर उन्होंने दूसरी साड़ी उठाई, अभी मुझे बुलाएंगे, हो गया, चांस तो बहुत कम, इतनी साड़ियाँ कम होती गई, और इस लोग ने वो साड़ी किसी और को, और एंड में वो साड़ी उठा के उनकी तरफ देखा, स्माइल दिया और फिर उनको दिया। तो शिल प्रभुपाद ऑर्डिनरी संत नहीं, परमहंस है, और कई ऐसा अनुभव है आगे चल के, जब शिला प्रभुपाद लीला समाप्त करने वाले थे, तो उन्होंने बोला था कि जो भी मेरे डिसाइपल्स है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आए। कई सारे भक्त लोग विदेशों विदेशों से आए, और 2 माता जी थी, वो इधर आंध्र प्रदेश में किसी मंदिर में सेवा में, तभी उतने भक्त नहीं थे, एक एक मंदिर में 2-3 भक्त थे, वो मोस्टली फॉरेन से आए हुए थे। इनकी काफी प्रबल इच्छा हुई कि शिला प्रभुपाद का अंतिम दर्शन हमको करना है, तो इधर मैनेज करने के लिए टेम्पल में 3-4 डिवोटी प्रभु जी थे वहाँ पे, कुछ बोला हम संभाल लेंगे, आप जाके, और समय नहीं था बिल्कुल, इनको जाना था, इधर कोई है ही नहीं, इनको जाना था ट्रेन से सुबह, और शाम वाली ट्रेन से वापस मंदिर पहुंचना था, तो सेवा कैसे होगी भगवान की। तो ये आई मथुरा में, आई वृंदावन में गई, और वृंदावन में कृष्ण बल्लभ मंदिर के पीछे शिला प्रभुपाद का क्वार्टर है, एज इट इज जो जब स्वस्थ थे शिला प्रभुपाद, तभी किसी को पास में नहीं जाने को मिलता था, बहुत मुश्किल था, उनका समय बचाना है और उनका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ताकि वो उनको जो करना है वो कर सके, इसलिए जो आजू बाजू में जो भक्त थे, उनका भी वो ड्यूटी था, कोई भी नहीं तो कोई भी आके कुछ भी पूछेगा, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें, तो जो इम्पोर्टेंट काम शिला प्रभुपाद करना चाहिए, हेल्थ ठीक नहीं तो कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो कोई भी उनको अंदर, किसी को भी अंदर जाने नहीं देते शिला प्रभुपाद क्वार्टर, कोई भी आया नो एंट्री, सीनियर डिवोटी सन्यासी को भी वो लोग जो लोग क्लोज थे वही लोग जाते थे, बाकी सब अंदर जाने नहीं देते। तो ये 2 माता जी आई, इनको भी बोला आपको एंट्री, बहुत बोली कि हम लास्ट दर्शन करने आई है, मंदिर में कोई नहीं है, सुबह की ट्रेन से आई, शाम को हम चले जाएंगे, आप प्लीज हमको एक बार सिर्फ हमको देखना है, देखना है और कुछ नहीं, हम ना बात करेंगे ना कुछ, उन्होंने बोला नहीं। तो फिर क्या, टाइम बीतता गया, हमको जाना भी था, तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है अभी क्या करें, शिला प्रभुपाद है यहाँ पे, किसी ने उनको बताया कि ये जो विंडो है, शिला प्रभुपाद का बेड बस विंडो के उस पार है, अब यहाँ क्लोजेस्ट है, यहाँ से आप प्रे कीजिए, और उन्होंने बोला बस यही हमारा अंतिम दर्शन है, यहाँ से हम प्रे करेंगे और हम चले जाएंगे। दोनों माता जी वहाँ पहुंची, और जैसे प्रे कर रही थी, तभी वो खिड़की खुल गई, और शिला प्रभुपाद का दर्शन उनको हो गया, तो दोनों बहुत भाव विभोर हो गए, how kind is Srila Prabhupada. Nobody listened to us, but he's in such state, still reciprocating. और फिर किसी ने आकर उनको बताया कि जो खिड़की है शिला प्रभुपाद कई हफ्तों से या महीनों से बंद है, और and because Srila Prabhupada asked us to open this window right now. तो भगवान के शुद्ध भक्त असाधारण होते हैं, गुरुजन असाधारण होते हैं, और इनकी शरण में हमको जाना चाहिए, भक्ति जो हम करते हैं इनके मार्गदर्शन में करना चाहिए, सब कुछ सरल हो जाएगा, नहीं तो भक्ति में आके भी हम कॉम्प्लिकेटेड, अंदर से सुखी नहीं मिलेगा रहेगा, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, और भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। आप मंदिर आइए, माला घुमाइए, सेवा कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, प्रचार कीजिए, लेकिन अगर हम अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में भक्ति नहीं कर रहे, कुछ नहीं होगा।
जैसे बोल भागवतम में श्लोक है, श्रम एव ही केवलम। अंत में अगर हम भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान के प्रति रुचि और प्रेम जागेगा नहीं, फिर श्रम ही है, चाहे आप गोवर्धन परिक्रमा क्यों ना, उसका फल तो है। लेकिन फिर हम सिंसियर है तो सिंसियर गुरु हमको मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेगा, सिंसियरली उनके मार्गदर्शन में हमको भक्ति करनी, भगवान की सेवा करनी, जो कि अकर्म है। तो एक स्टेज में हमको आना है जिसमें हम जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। जब हम उस स्टेज में आएंगे तब हम भगवत धाम जा सकते हैं। जब तक इंद्र तृप्ति की इच्छाएं हमारे मन में, ये सब नहीं होगा। और जैसे हमने पढ़ा कि जब हम जो भी करेंगे सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तो उस समय चाहे हम जो भी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, परिवार, बच्चे, सेवा कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन हम इस सब से परे होंगे और सब कुछ भगवान की सेवा ही होगी। बहुत कुछ करते हुए भी हम फ्री रहेंगे, इंटेग्रिटी नहीं रहेंगे, और अंत में हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो हमेशा हमको श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, प्रे करना चाहिए, और वे हैं, और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन वैसे हो जाएगा और हम हर समय आनंद के अनुभूति करेंगे। चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा हो, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंटाइगर्ड हम नहीं होंगे। और शुद्ध सत्य प्लेटफॉर्म, जो कि जब जिसमें वो उस स्तर पर हम जो भी करेंगे सिर्फ उसी पर उस स्तर पर हम पहुंचेंगे और गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान को हम प्राप्त करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है? Any questions? No questions? हाँ चलो। आइडियली उनको वहां से लेकर जाना चाहिए जहाँ पे हम उनको अच्छे से सुरक्षित तरीके से उनकी सेवा कर सकें, वहाँ उनको लेके जाना चाहिए। शुद्ध भक्त मिलना बहुत आसान, मुश्किल है कलयुग में। लेकिन तुलसी महारानी ऐसी शुद्ध भक्त है भगवान की, जिनका संग हम आसानी से कर सकते हैं। हमको लाना है घर में, आसानी से आ जाती है। 20 रुपए देंगे तो वो दे देते हैं, जमले वाला बहुत वाला, छोटी सी। और उसकी सेवा करेंगे तो जितनी हम दिल से सेवा करेंगे ना, उतनी वो भरी पूरी हो जाएंगी, हरी मंजरी आएंगी उसमें, और उनकी सेवा करेंगे तो भगवान हमको मिल जाएंगे। तो बहुत ही मतलब अपराधजनक सिचुएशन है कि लोग उसमें इस तरह से कर रहे हैं। तो बेस्ट ये है कि आप उनको वहां से निकाल कर या तो किसी गार्डन में लेके जाए जहाँ से कुछ होगा नहीं, और आप रेगुलर जाके दर्शन ले सकें, इनकी सेवा कर सकें, या तो फिर आप घर में ला सकते हैं, ज्यादा है तो घर में पॉसिबल सुरक्षित जगह आप लेके जा सकते हैं। कई बार सोसाइटीज में भी होता है अंदर गार्डन, तो वहाँ रख सकते हैं, पानी दे सकते हैं। इस तरह से सेवा सेवा भी होगी और बाकी लोगों को भी लोग बचेंगे इस बात से। तुलसी महाराज जो सेवा करता है और तुलसी के चरण उसका तिलक जो करता है, भगवान बोलते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा बहुत आसान है भगवान को पाना, उसको कॉम्प्लीकेट कर देते।
क्यों हम कीर्तन करेंगे? हाँ, ऑनलाइन। हाँ, कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है और धर्म क्या है। कर्म में सोचूंगा जो भी पढ़ाई होगी और जॉब हो गया, पैसे कमाया, ये कर्म मैं बोलूँगा। कर्तव्य क्या है? जैसे माता पिता का ख्याल रखना, सेवा करना, कोई इच्छा है तो पूरी करना, इसको कर्तव्य बोलूँगा। धर्म मतलब भगवान की भक्ति करना। तो तीनों ही करना चाहिए और तीनों में से सबसे इम्पोर्टेंट है धर्म। अगर धर्म नहीं होगा तो बाकी चीजें हम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो पढ़ाई की बजाय हम कुछ क्रिकेट मैच देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कर्म हम बराबर कर नहीं पाएंगे। कर्तव्य जब उनको पता ही नहीं होगा, हृदय में वो प्रेम ही नहीं होगा। असली प्रेम सिर्फ और सिर्फ भक्ति से आ सकता है, बाकी तो स्वार्थी प्रेम है ना। शीला प्रभुपाद ने जैसे हम सबको प्रेम दिया, हमारे लिए वो गए और इतना प्रेम उनमें आज भी है कि हम डिपेंड उन पर रहेंगे तो ही विल डू मोर देन एनीबॉडी एल्स। अपने माता पिता भाई बहन बेटे से ज्यादा वो करेंगे, ऐसे अनुभव है भक्तों। तो कर्तव्य भी कोई भी अच्छे से तभी करेगा जब उसके हृदय में वो प्रेम भाव हो, तब, है ना। जो श्रवण है, माता पिता की सेवा में पूरा समर्पित कर दिया अपने आप, शादी भी नहीं, बाधा होगी और सेवा करते हुए ही उन्होंने प्राण त्याग। तो कर्तव्य भी तभी होगा जब भक्ति हो। और मान लीजिए पढ़ाई भी कर रहा है, माता पिता की सेवा भी कर रहा है, कब तक करेगा? जब तक माता पिता इस शरीर में है तब तक ना। अगले जन्म में अगर पशु योनि में माता पिता चले गए तो सबसे बड़ी सेवा वही है, भक्ति करना और माता पिता को भी भक्ति में सहायता करना, तीर्थ यात्रा। और मैं कहूँगा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, तो भक्ति करें और माता पिता के आशीर्वाद से और माता पिता की सेवा करें, उनको भक्ति में सहायता करें और माता पिता बच्चों को सहायता करें। इस तरह से सब कुछ अच्छे से हो सकता है, बिना धर्म के बाकी सब अधूरा है। ऑनलाइन अगर किसी का प्रश्न है कुछ, अनम्यूट करके पूछिए। हाँ, they will unmute themselves. Hare Krishna. If anyone has any other questions, you can ask. Okay. ठीक है, we can do something. हाँ, परमति ब्रो कुछ क्वेश्चन आपको तो पूछ सकते। कैसी होगा? ठीक है, we can do something. Krishna Krishna Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
बोलिए श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की, कलयुग पावन विद्या परिणाम संकीर्तन की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। Hare Krishna. Grace Krishna Chaitanya Prabhu ki जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, Hare Krishna. So, thank you, Prabhuji, for the wonderful class. Thank you. Filled with emotional devotion. Devotion, emotions and devotion. Sorry. So we thank Prabhuji for sharing his consciousness through the medium of this class. So we thank him traditionally by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So there is a special program. There are two special programs actually. So one is today is Rasika Madhu's birthday, so we celebrate that. And the other special program, those who are willing to join us. So after Prasadam, be around 3:50 or something, or maybe around 3 o'clock. Let's say we go for book distribution. So whoever wants to join us, there are books available. Prabhuji आप बता रहे थे प्रभुपाद के बारे में, तो let's distribute his books together also. So whoever wants to join, we can stay back and can go on the streets. We'll go first to temple, collect the books, and then go on the streets. Hare Krishna. Thank you everyone. Thank you everyone for joining online as well. And those who are in Bombay, if you all want to join, you can come down. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna. Thank you. Yes. Hare Krishna.